أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم. سيقول السفهاء من الناس عنقریب لوگوں میں سے جو لوگ بیوقوف ہیں وہ کہیں گے، سوال کریں گے، اعتراض کریں گے، ما ولاہم عن قبلتہم، ان کو یعنی مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا، التی کانوا علیہا، وہ قبلہ جس کی طرف وہ چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے. قل للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دو اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں جن کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی. اس کی شان نزول کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہجرت ہو جانے کے بعد عام طور پر جو روایتیں ہیں وہ یہی کہتی ہے کہ ہجرت ہو جانے کے بعد، اور کچھ قول ایسے بھی ہیں کہ ہجرت سے کچھ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، قبلہ بدل دیا. شروع سے لے کر کے ہجرت تک یا ہجرت سے کچھ پہلے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، قبلہ کی طرف نماز پڑھتے تھے. ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اب اپنا چہرہ جو ہے بیت المقدس کی طرف کر دے، بیت المقدس کی طرف کر دے. اب جو دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ ایک بات. دوسری بات، ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا. مکہ مکرمہ کے اندر میں جب تک رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
हरज की बात नहीं थी, कोई परेशानी की बात नहीं थी। इसलिए कि यूँ समझो कि ये मक्का मुकर्रमा है यहाँ पर, और ये शिमाल की जानिब में, शिमाल उत्तर दिशा, शिमाल की जानिब के अंदर में मदीना मुनव्वरा है, फिर उससे आगे बैतुल मक़दिस है। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इब्राहीमी और दीन इस्माइली के ऊपर में भेजे गए थे, और आप ये चाहते थे कि काबतुल्लाह और किबला वही नमाज के अंदर में किबला रहे कि जिसकी तरफ नमाज पढ़ी जाए। तो मक्का मुकर्रमा में जब तक रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस तौर पर नमाज पढ़ी कि काबतुल्लाह की तरफ भी चेहरा हो जाए और बैतुल मक़दिस की तरफ भी चेहरा हो जाए। आसान था, ये समझो कि ये बैतुल मक़दिस, फिर भी इसके अंदर में मदीना मुनव्वरा, और फिर यहाँ पर मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा से जुनूब के अंदर में है, यानी यूँ समझो कि ये जो जिहद है, ये शिमाल, इधर है मदीना मुनव्वरा और इधर है मक्का मुकर्रमा। आप जाएंगे मदीना मुनव्वरा तो आप देखेंगे कि मदीना मुनव्वरा में जो नमाज पढ़ते हैं तो शिमाल से जुनूब की तरफ नमाज पढ़ते, उत्तर से दक्षिण की तरफ के अंदर में नमाज पढ़ते। तो मक्का मुकर्रमा से शिमाल के अंदर में मदीना हुआ और फिर बैतुल मक़दिस हुआ। तो जब तक मक्का मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, काबतुल्लाह के सामने इस तौर पर खड़े रहते थे कि आपका चेहरा काबतुल्लाह की तरफ भी हो जाए और बैतुल मक़दिस की तरफ भी हो जाए। लेकिन वो दूसरी बात, और वही मशहूर है कि हिजरत करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि अपना चेहरा बैतुल मक़दिस की तरफ कर दो, बैतुल मक़दिस की तरफ कर दो। तो ज़ाहिर बात है कि मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मक्का मुकर्रमा इधर जुनूब के अंदर में है। अब अगर उनको हुक्म दिया जाएगा तो नमाज पढ़ेंगे फिर शिमाल की तरफ आगे। ये एक कौल के मुताबिक 16 महीने तक और दूसरे कौल के मुताबिक 17 महीने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ी, बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ी। 16 महीने के बाद या 17 महीने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने असली हुक्म नाजिल फरमाया, ये काबतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने का। इस बात को तफसील से अर्ज़ करने से पहले एक बात ये समझें कि ये जो बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, पूरे कुरान पाक के अंदर में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ने का जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया वो कुरान पाक के अंदर में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। सुन्नत नबवी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ये साबित हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने वही गैर मतलब के ज़रिया हुक्म दिया कि तुम अपना चेहरा बैतुल मक़दिस की तरफ करो। वही जो उतरती थी वही दो तरह की है, वही की दो किस्में, एक है वही मतलू और दूसरा है वही गैर मतलू। वही मतलू का माना है ऐसी वही कि जिसकी तिलावत की जाए, हम तिलावत करते सूरह फातिहा से लेकर के सूरह नास तक जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाजिल फरमाया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से, ये वही मतलू कहलाती है जिसकी तिलावत की जाती है। और बहुत से अहकाम ऐसे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर करके दिखाए और जिब्रील ने आकर के बताया, लेकिन कुरान पाक के अंदर में वो मौजूद नहीं है। इसको वही गैर मतलब कहते हैं। या दूसरे अल्फाज के अंदर में यूँ समझो, सीधे साधे अल्फाज के अंदर में कि वही मतलब से मुराद कुरान पाक और वही गैर मतलब से मुराद हदीस पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है वो। तो जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम कुरान पाक से साबित होते हैं, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम अहादीस से भी साबित होते हैं, हदीसों से भी ये साबित होते हैं। सूरह नज्म के अंदर में अल्लाह ने फरमाया वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बोलते हैं
नफ्सानी ख्वाहिशात से बोलते नहीं है। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वही बोलते हैं कि जो उनको वही की जाती है। इस पर उलमा किराम ने लिखा हुआ है कि शरीयत मुराद है। शरीयत के बारे में जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तो वो वही होती, वरना दुनियावी बारे के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि दुनियावी बारे में मुझसे मत पूछो, अंतुम आलम भी उमर दुनिया को, तुम अपने दुनियावी उम्र को हमसे ज़्यादा जानते हैं। मिसाल के तौर पर अब किसी को अगर मकान बनाना है तो इंजीनियर को पूछा जाएगा, इंजीनियर से नक्शा बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत की जाएगी, मशवरा किया जाएगा। किसी अल्लाह वाले की खानका में जाकर के थोड़ी पूछा जाएगा कि हज़रत मुझे मैंने इमारत और बिल्डिंग बनाना है, नक्शा बना दो, उनका काम नहीं है। अल्लाह वाले दुआ देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंतुम आलमु बि उमूर दुनिया को। एक बात इसी के सिलसिले की बता दूं, हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। एक सहाबी के बाग के अंदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो वो सहाबी खजूर के दरख्त के ऊपर में कुछ लगा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है? तो वो सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इसको तलकीह कहते हैं। ये जो खजूर जिस पर लगते हैं ये मादा खजूर होती है, नारी होती है। उसके अंदर में नर भी होता है और नारी भी होती है। जैसे पपीते के अंदर में नर भी है और नारी भी है, कुछ कपास भी है उसके अंदर में नर और नारी भी है। तो खजूर के अंदर में भी ऐसा है। खजूर के ऊपर में जब फूल लगते हैं मादा के ऊपर में, तो नर खजूर के फूलों को, या आजकल उसका पाउडर भी मिलता है बाजार के अंदर में, वो पाउडर छिड़क देते हैं और फिर उसके ऊपर में टाट बांध देते हैं। तो इसकी वजह से बड़े बड़े खजूर होते हैं। हमारे यहाँ जो खजूरें हैं तो जो छोटी छोटी खजूरें होती है ये इसलिए होती है कि इसके ऊपर में वो तलकीह नहीं करते, यानी नर खजूर का पाउडर या फूल उसके साथ में लगाते नहीं है। अगर लगाओ तो यहाँ पर भी बड़ी बड़ी खजूर हो सकती है। हमने तजुर्बा भी किया था और हुई भी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहेगा तो खजूर छोटी होगी, अल्लाह चाहेगा तो खजूर बड़ी बड़ी होगी। अक्सर ज़्यादातर दरख्तों के ऊपर में वो सहाबी वो काम कर चुके थे, कुछ दरख्त बाकी थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो छोड़ दिया कि नहीं करते चलो। कुछ अरसे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बाग के अंदर में तशरीफ़ ले गए तो देखा कि खजूर के ऊपर में, दरख्तों के ऊपर में खजूर लगे हुए हैं और बड़े बड़े लंबे लंबे खजूर है। और कुछ दरख्त ऐसे हैं कि जिनके ऊपर में छोटे छोटे खजूर लगे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई एक ही ज़मीन है, एक ही पानी पिलाया गया, यहाँ पर बड़े बड़े लंबे लंबे खजूर है, यहाँ पर छोटे छोटे हैं। तो सहाबी ने याद दिलाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आए थे और हम नर खजूर के फूलों को मादा खजूर के साथ में मिलाते थे तो आपने मना किया था, ये तो अल्लाह के हाथ में है, इन खजूरों के ऊपर में नहीं ऐसा नहीं किया गया। तो ये खजूर छोटे छोटे हैं, बाकी सारे खजूर बड़े बड़े हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंतुम आलमु बि उमूरि दुनिया को, दुनियावी उम्र के अंदर में तुम हमसे मत पूछो, तुम ज़्यादा जानते हो। तो दुनियावी बातें नहीं, शरीयत के बारे के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमावे, जो भी करे, और आपके सामने कोई काम किया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे तो उस काम के जायज़ होने की दलील और निशानी है। अगली वाली मजलिस के अंदर में भी अर्ज़ किया गया था इसको, ये है कौली, फ़ैली और तकरीरी, ये हदीस है। आप अपने कौल से, ज़बान से बयान फरमा कि ऐसा करो ऐसा मत करो, अपने अमल के ज़रिए से बतलावे, ये हदीस है फ़ैली। और कोई काम करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, ये उस काम के जायज़ होने की दलील और निशानी थी। तो हदीस जो है ये भी वही गैर मतलूब है। और बैतुल मक़दिस की तरफ चेहरा करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया, वही गैर मतलूब के ज़रिया से, कुरान पाक के अंदर में हुक्म नहीं मिलेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कुरान पाक के अंदर में नहीं है। कुरान पाक के अंदर में अक़ीमुस सलात, नमाज कायम करो, चलो बताओ फजर की नमाज कहाँ पर है, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की कहाँ पर है,
ये उलमा किराम ने कुछ आयतों से साबित किया हुआ है कि इससे फजर मुराद, इससे ज़ोहर मुराद, इससे असर, इससे मगरिब और इससे ईशा। चलो मान लिया। उसके बाद में रकातें बताओ। फजर के अंदर में 4 रकात, ज़ोहर में 12 रकात, असर में 8 रकात, मगरिब में 7 रकात, ईशा के अंदर में 17 रकात। कहाँ पर है? कुरान के अंदर में नहीं है, कुरान में है नहीं। कुरान के अंदर में इतना हुक्म है कि ज़कात दो, कौन देगा, किसको देगा, कौन से माल पर ज़कात दी जाएगी, कुरान पाक के अंदर में नहीं है। ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। इसीलिए शरीयत का दारो मदार 2 चीज़ों के ऊपर में है, कुरान के ऊपर में और हदीस के ऊपर में। और तीसरा नंबर जो दलील है ये इजमा उम्मत है। ऐसा काम कि जो कुरान में नहीं है, ऐसा काम कि जो हदीस के अंदर में नहीं है, लेकिन उम्मत ने इसके ऊपर में इजमा किया, इत्तेफाक किया, पूरी उम्मत ने इजमा और इत्तेफाक किया, तो ये भी दलील है। जुमा के दिन 2 अज़ानें पढ़ी जाती है। जुमा के दिन 2 अज़ानें पढ़ते हैं, एक माइक में पढ़ते हैं और एक इमाम साहब के सामने पढ़ते हैं। इमाम साहब के सामने जो पढ़ते हैं ये दूसरी अज़ान, और माइक में जो देते हैं वो पहली अज़ान। ये पहली अज़ान पहले नहीं थी, दूसरी अज़ान थी। दूसरी अज़ान थी पहले, पहली अज़ान पहले नहीं थी, दूसरी अज़ान पहले थी। अब इस्लाम बढ़ा, आबादी बढ़ी, अब मस्जिद के अंदर में जो इमाम के सामने जो खुतबा देने से पहले जो अज़ान पढ़ी जाती है, लोगों को मालूम नहीं पड़ता। इसलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर में पहली अज़ान ये जारी की गई जो हम माइक के अंदर में पढ़ते हैं। एक है अज़ान और एक है इकामत। अज़ान कहते हैं अल-इलाम लिल-गाइबिन, जो लोग गायब हैं उनको खबर देने के लिए कि नमाज का वक्त हो गया। और इकामत जो कही जाती है इमाम साहब के पीछे, तो ये इलाम लिल-हाज़िरीन है कि जो लोग अज़ान सुन करके मस्जिद के अंदर में आ गए, अब उनको इत्तला दी जाती है कि आ जाओ जमात खाने के अंदर में, अब नमाज खड़ी हो रही है। तो ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर में ये जारी की गई। तरावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातों तक पढ़ी, 20 रकात पढ़ी। बुखारी शरीफ के अंदर में रिवायतें मौजूद है। चौथे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं निकले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चौथी रात को नहीं निकले तो सहाबा किराम जो है आपके हुजरे मुबारका के पास में खड़े हो गए, खांसने लगे, कंकरियाँ मारने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं निकले। फजर के वक्त में जब निकले तो फजर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा रात का खांसना और कंकरियाँ मारना ये वगैरह मुझे मालूम था, मैं जाग रहा था लेकिन मैं नहीं आया, इसलिए तुम्हारे अंदर जज्बा है और शौक़ है और वलवला है। अगर यही शौक़ और जज्बा और वलवला रहा तो मुझे डर लगा कि कहीं ऐसा न हो कि ये 20 रकात तरावी जो है वो फ़र्ज हो जाए और बाद में तुम उसको अदा न कर सको, इसलिए अपने तौर पर पढ़ो। तो 20 रकात तरावी 3 रातों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ पढ़ी, 3 रातों जमात के साथ में पढ़ी, फिर इनफिरादी तौर पर पढ़ी जाने लगी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर में इनफिरादी तौर पर पढ़ी गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के शुरू हिस्से के अंदर में इनफिरादी तौर पर पढ़ी जाती थी। एक मरतबा रमज़ान की रातें थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर में आए तो देखा कि 3-4 आदमियों की जमातें लगी हुई है, तरावी पढ़ते हैं, 2-3 इधर है, 3-4 इधर है, 4-5 इधर है, अलग अलग जमातों के साथ में नमाज पढ़ते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबको जमा किया और उस वक्त के कारी साहब, बड़े कारी उबय बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सबसे बड़े कारी हैं, उनको कहा कि आप नमाज पढ़ो जमात के साथ में। अब जमात के साथ में जब नमाज पढ़ाई तो फरमाया कि निअमतुल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी चीज़ ईजाद की हुई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अलग अलग इनफिरादी तौर पर जो लोग नमाज पढ़ते थे उनको एक इमाम के पीछे जमा कर दिया। 20 रकात पढ़ते थे अलग-अलग तौर पर, तो उनको एक इमाम के पीछे इकट्ठा कर दिया, जमा कर दिया। ये है इजमाई उम्मत, ये इजमाई उम्मत है। उस वक्त के अंदर में जितने भी सहाबा किराम थे, ताबीईन थे, उनमें से किसी ने भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस अमल की मुखालफत नहीं की। और चौथी चीज़ है क़यास शरई। क़यास शरई का मतलब ये है कि आदमी कुरान के अंदर में सोचे, गौर व फिक्र करे, हदीस में गौर व फिक्र करे, सोचे,
اجماع امت کرنے میں غور و فکر کرے، سوچے، اس کے بعد میں حکم کو ثابت کرے۔ یہ بھی ثابت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا امیر اور گورنر بنا کر کے بھیجا۔ جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بما انت تقضی یا معاذ، یہ معاذ کس سے تم فیصلہ کرو گے؟ تمہارے پاس میں لوگ آئیں گے، اختلاف لے کر کے آئیں گے، جھگڑے لے کر کے آئیں گے، لوگ تم کو پوچھنے کے لیے آئیں گے، تم کیسے فیصلے کریں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بکتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب دیکھوں گا، قرآن پاک، اور اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ، کوئی بات ایسی پیش آئے کہ تم قرآن کے اندر میں دیکھو اور قرآن میں موجود نہ ہو تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فَبِسُنَّةِ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث اور عمل کو دیکھ کر کے میں فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر میری حدیثوں کے اندر میں یا میرے عمل کے اندر میں وہ بات نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اجتہد برائی، میں قرآن اور حدیث کو دیکھ کر کے اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے یا اس جیسی کوئی چیز ہے قرآن میں یا حدیث میں ہے تو اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں قیاس شرعی۔ اسی لیے ہمارے یہاں احناف کے یہاں، حنفیوں کے یہاں دلیلیں، 4 دلیلیں، کتاب اللہ یعنی قرآن پاک، حدیث رسول اللہ، احادیث، اجماع امت 3، اور قیاس شرعی۔ قیاس شرعی کا یہ مطلب نہیں کہ میرے عقل میں جو آوے اور آپ کی عقل کے اندر میں جو آوے وہ آپ فیصلہ کر دیں گے، نہیں۔ دوسرے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ حنفی لوگ عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، قیاس سے۔ وہ عقلی فیصلہ مراد نہیں ہے۔ قیاس شرعی اجتہاد کرنا، باقاعدہ اس کے لیے لمبی چوڑی شرطیں ہیں اور لمبی چوڑی تفصیل ہے، 2 گھنٹے کے اندر میں بھی پوری نہ ہو، اتنی شرطیں ہیں قیاس شرعی کو ثابت کرنے کے لیے اور اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو بغیر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہوتا نہیں تھا۔ بیت المقدس کی طرف جو نماز کا حکم آیا یہ وحی غیر مطلوب کے ذریعہ سے آیا۔ 16 مہینے 17 مہینے تک نمازیں پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبۃ اللہ کی طرف ہو جاوے، مکہ مکرمہ کی طرف ہو جاوے، اس لیے کہ بیت المقدس یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور بیت اللہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، جیسا بھی 1-2 دن پہلے وہ بات آ گئی کہ عمارت کعبۃ اللہ کی حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے بنائی تھی۔ بخاری شریف کے اندر میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلی مسجد یعنی سب سے پہلا اللہ کا گھر کون سا ہے روئے زمین پر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، قبلہ مسجد حرام جو ہے وہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی یہ دوسرے نمبر پر۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کعبۃ اللہ کی عمارت اور بیت المقدس کی عمارت یعنی بیت اللہ کی عمارت اور بیت المقدس کی عمارت ان دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ تھا، کتنے عرصے کے بعد میں یہ بنایا گیا؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد بیت المقدس 40 سال کے بعد میں بنایا گیا۔ تو سب سے پہلے مسجد بیت اللہ، مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں ہے، دوسری مسجد بیت المقدس جو فلسطین کے اندر میں ہے، اور تیسرے نمبر پر درجے کے اعتبار سے مسجد ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد میں جو بنائی گئی۔ مسجد نبوی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے اندر میں نماز پڑھی۔
तब ये समझो कि हरम शरीफ, बैतुल मक़दिस, मस्जिद नबवी और कूबा की मस्जिद, ये 4 मस्जिदें हुई। उसके बाद में 5वें नंबर पर जो मस्जिद रूए ज़मीन के ऊपर में हुई, ये जवाफा के अंदर में हुई, अल अहसा। अल अहसा का जो इलाका है, अल अहसा किसी सिटी का या शहर का नाम नहीं है, एरिया का नाम है। जैसे साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, ये कोई गांव का नाम नहीं है, एरिया और इलाके का नाम है। अल अहसा जो है 35 देहातों के एरिया का नाम है। और उसमें सबसे बड़ा जो एरिया है जहाँ पर हम लोग थे, तो ये अल हुफूफ है। ये वहाँ पर हॉस्पिटल है, जेल है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं वगैरह, सब कुछ मार्केट है वगैरह, सब कुछ है। वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी के ऊपर में एक छोटा सा गांव है, आज भी मौजूद है। उस गांव का नाम है जवाफा। जवाफा नाम है उस गांव का नाम, जवाफा है। यहाँ के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर में पहुँचे थे। अब अल अहसा से 400 किलोमीटर रियाज, और रियाज से फिर 900 किलोमीटर जो है मक्का मुकर्रमा, और वहाँ से 400 किलोमीटर मदीना मुनव्वरा, या फिर ये रियाज से एक दूसरा रास्ता पड़ता है, अल कसीम अल बुरैदा होकर के मदीना मुनव्वरा का रास्ता पड़ता है। ये 1200-1500 किलोमीटर से कम रास्ता नहीं पड़ता है, चाहे मक्का मुकर्रमा से जाओ या अल कसीम बुरैदा से जाओ। ये लोग यहाँ से गए थे मदीना मुनव्वरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर में पहुँचे। वहाँ पर आपकी खिदमत के अंदर में साथियों ने खजूर पेश किया। ये जो जमात थी, इस जमात का नाम था वफ़द बनी अब्दुल कैस। वफ़द बनी अब्दुल कैस, वफ़द यानी जमात, बनी यानी बेटे, अब्दुल कैस के बेटों की जमात। बुखारी शरीफ के अंदर में भी ये रिवाज मौजूद है। बुखारी शरीफ में है कि ये जमात बहरीन से आई थी, ये जमात बहरीन से आई थी। इसलिए कि ये जो अल अहसा का जो एरिया है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में बहरीन के अंदर में था, बहरीन में था। अभी बहरीन के अंदर में नहीं है, अभी आप देखेंगे बहरीन के अंदर है, बहरीन में मस्जिद नहीं है, अल अहसा सऊदी अरब के अंदर में है। तो ये लोग वहाँ पर पहुँचे, जुमा का दिन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर में खजूरें रखी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें सब देखी। उसके बाद में सब की तरफ देखा, देख करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन खजूरों के अंदर में तुम्हारे इलाके की जो उम्दा किस्म की खजूर है वो इस खजूरों के अंदर में मौजूद नहीं है। और तुम ये जितने भी साथी हो, इन साथियों के अंदर में तुम्हारा कोई अमीर नहीं है, तुम्हारा कोई बड़ा नहीं है। तो साथियों ने कहा कि बात सही है, हमारे अमीर है, ये रास्ते के अंदर में जो फलाना करीब के अंदर में जो बाग है, खेत है, वहाँ पर पानी है, वहाँ पर गुस्ल करके नए कपड़े पहन करके आपकी खिदमत के अंदर में आ रहे हैं, वो हमारे अमीर हैं। और ये जो खजूरें हैं, ये हमारे इलाके की ये खजूरें हैं, उम्दा किस्म की जो खजूर है जिसको हम अजवा कहते हैं। मैगी होती है 80 रियाल की, 100 रियाल की किलो मिलती है आज भी। तो ये अजवा किस्म की जो उम्दा खजूर है वो हमारे अमीर के पास में है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा माजिज़ा उनके सामने ये ज़ाहिर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों के दरमियान में तुम्हारा कोई अमीर नहीं, और जो खजूर लाए हैं तो तुम्हारे इलाके की उम्दा किस्म की खजूर नहीं है। ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश हाथ पर मुसलमान हुए, जुमा की नमाज पढ़ी, और वहाँ से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ऐसी बात हमको बता दें, इसलिए कि हम दोबारा यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए कि हमारे और आपके दरमियान के अंदर में कबीले मुज़र है, और कबीले मुज़र जो है ये काफिले वालों को लूट लेते हैं, मार डालते हैं, और अगर हमारा मुसलमान होना मालूम हो जाएगा तो और ज़्यादा परेशान करेंगे, कत्ल कर डालेंगे, यहाँ आने नहीं देंगे। इसलिए आप बातें बता दें ऐसी कि दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत न पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी नसीहतें बयान फरमाई। उसके बाद में ये लोग जवासा वापस आए। जवासा वापस आने के बाद में उन्होंने जुमा की नमाज़ पढ़ी और वहाँ पर मस्जिद बनाई छोटी सी। पहले हम जाते थे तो ये मिट्टी की बनी हुई थी, दीवारें और छत वगैरह भी था, और अब तो गवर्नमेंट ने जो उसको सहीद करके ऐसी ही बनाई है जैसे पहले थी। गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ों को मिटा देती है, लेकिन इस मस्जिद को बाकी रखा है। सहाबा किराम के हाथ की बनी हुई है और बिल्कुल छोटी सी। बस ये समझे कि हमारे यहाँ जो सब लगती है 13 आदमियों की सब लगती है हमारे यहाँ। बस वो 8-10 आदमियों की सफ़ लगे
इतनी चौड़ी, और 2 या ज़्यादा अच्छी तरीके से याद नहीं है, 2 या 3 सब बस, यानी मुश्किल से 25-30 आदमी नमाज पढ़ सके, ऐसी थी। अब गवर्नमेंट ने उसको पक्की बना दिया है। ये है मस्जिद जवासा। तो ये भी सहाबा किराम के हाथों से बनी हुई है। बहर के अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि काबतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़े, किबला की तरफ नमाज पढ़े। अब समझो कि ये मदीना मुनव्वरा है, यहाँ पर मदीना मुनव्वरा, इधर में बैतुल मक़दिस है, इधर में बैतुल मक़दिस है, और मदीना मुनव्वरा से इधर जुनूब के अंदर में बैतुल्लाह है, काबतुल्लाह है। अब यहाँ से अगर हम नमाज पढ़ेंगे, कोई भी नमाज, तो नमाज के अंदर में चेहरा हमारा ऐसा करेंगे, शिमाल की जानिब करेंगे, और काबतुल्लाह की तरफ पढ़ेंगे तो हमारा चेहरा जुनूब की जानिब में होगा, दक्षिण की जानिब के अंदर में होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 महीने तक या 17 महीने तक इस तरफ नमाज पढ़ी, बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ी। अब आगे एक रिवायत के मुताबिक तफसीर इब्न कसीर के अंदर में लिखा हुआ है, दूसरी रिवायत भी उसी के अंदर में लिखी हुई है। एक रिवायत के मुताबिक ज़ोहर की नमाज थी, ज़ोहर की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे थे, और दूसरी रिवायत के मुताबिक असर की नमाज पढ़ा रहे थे। फिर ये ज़ोहर की नमाज हो या असर की नमाज हो, कहाँ पर पढ़ा रहे थे? मस्जिद नबवी में ये नहीं था, मस्जिद नबवी के अंदर में ये हुक्म नहीं आया। दूसरी जगह किसी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले बनु सलमा के अंदर में गए थे, कबीले बनु सलमा के अंदर में, वहाँ जब पहुँचे तो नमाज का वक्त हो गया। किसी ने कहा कि ज़ोहर की नमाज का वक्त था, या किसी ने कहा कि असर की नमाज का था। बहर क्या, ज़ोहर का है तो अभी 4 रकात, असर है तो अभी 4 रकात। कबीले बनु सलमा के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की पहली 2 रकात या असर की पहली 2 रकात पढ़ाई बैतुल मक़दिस की तरफ, बैतुल मक़दिस की तरफ 2 रकात पूरी हुई, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नाजिल फरमाया चालू नमाज के अंदर में। इसका तज़किर आगे है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ देखता हुआ देखते हैं, फेरते हुए हम देखते हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, अनक़रीब ज़रूर व ज़रूर हम आपके लिए ऐसा किबला बदल देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। ये उस वक्त का है जबकि आप बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं। चालू नमाज के अंदर में अल्लाह ताला का हुक्म आया जिब्रील लेकर के, फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, फवल्ली अपने फवल्ली यानी फेर दे, वजहका अपने चेहरे को, लिहाजा अपने चेहरे को फेर दो, शतरल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की जिहत की तरफ, मस्जिद हराम की सीमत की तरफ। चालू नमाज में ये हुक्म आया। 2 रकात नमाज पढ़ी बैतुल मक़दिस की तरफ, और 2 रकात पढ़ने के बाद में ये हुक्म आया। अच्छा, आप यूँ समझो कि क्या हाल हुआ होगा, जो सहाबा किराम ने भी लिखा, अहादीस के अंदर में भी लिखा। हम नमाज पढ़ते इधर, इमाम साहब कहाँ होंगे? इमाम साहब इधर आगे होंगे, नहीं इस तरफ नमाज पढ़ते हैं। जैसे अभी हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं तो इमाम साहब यहाँ आगे और पीछे मुक्तदी इधर, लेकिन वहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी बैतुल मक़दिस की तरफ, तो इमाम साहब थे आगे इधर, बाद में पीछे थे मुक्तदी। और बाज़ रिवायतों के अंदर में आता है कि उस जमात के अंदर में जिस नमाज के अंदर में किबले का बदलने का हुक्म है, औरतें भी थी। औरतों के लिए हुक्म क्या है कि अगर औरतें आ जाए तो मर्दों के पीछे बच्चे, और फिर उसके पीछे जो है औरतें बच्चों के भी पीछे खड़ी रहेगी। 2 रकात नमाज पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिमाल की जानिब, फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम का हुक्म आया। तो अब दूसरी 2 रकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी बैतुल्लाह की तरफ, हरम शरीफ की तरफ, मक्का मुकर्रमा की तरफ। कैसे हुआ? अब उलमा किराम ने लिखा कि इमाम साहब वहाँ थे आगे, तो चल करके नमाज के अंदर में चल करके आगे इधर आ गए, और यहाँ पर आगे हो गए। और मुक्तदी जो पीछे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इधर वो इधर पीछे हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के।
اور جو عورتیں مردوں کے پیچھے تھی وہ عورتیں چل کر کے ادھر مردوں کے پیچھے ہو گئی. یعنی یوں سمجھو کہ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی اور 2 رکعت بیت اللہ کی طرف پڑھی گئی. یہ نماز جو 2 رکعت ادھر ادھر پڑھی گئی، اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد قبلتین. مدینہ منورہ کے اندر آج بھی موجود ہے. جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو عمرہ زیارت حج نصیب کرے. جب بھی جاؤ تو جانا چاہیے. اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 قبلے والی، کہ مسجد اقصی کی طرف بھی نماز پڑھی گئی اور پھر بیت اللہ کی طرف آج بھی نماز پڑھی جاتی ہے. ابھی ایک چھوٹی سی بات، ابھی 2 سال پہلے میں حج میں گیا تھا، تو یہ کافی وقت تھا وہاں، 12-15 دن ٹھہرنے کا موقع ملا تھا. تو ٹور والوں کے ساتھ میں گئے تھے. وہ زیارہ کر کے لے جاتے ہیں ٹور والے، 15 ریال 20 ریال کے اندر میں سب مسجدوں وغیرہ کے اندر میں لے جاتے ہیں. تو مسجد قبلتین کے پاس میں ہماری بس ٹھہری. تو پاکستانی ڈرائیور بھی تھا، اور وہ یہ اعلان سری کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بھی پاکستانی تھا. تو باتوں سے اور چہرے بسری وغیرہ سے لگتا تھا کہ وہ بھی کوئی عالم جیسا ہی تھا. جب ہم لوگ اترے تو کہا کہ یہ مسجد قبلتین مسجد ہے، آپ وہاں جاؤ، وضو نہ ہو تو وضو کرو، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو اور پھر آؤ. اور جو چیز آپ کو عجیب لگے وہ آ کر کے ہم کو بتانا، ہم آپ کو پوچھیں گے. اب یہ اس نے اعلان کیا تو ہمارے بہت سے ساتھی بھی تھے، مرد عورتیں تو الگ تھی، بہت سے ساتھی بھی تھے. وہ اس نے اعلان کیا تو اس میں ہے کیا، دیکھیں کیا ہے اس کے اندر میں. تو ایک بات تو یہ نظر آئی کہ یہ جو بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھی گئی تھی اس کے اوپر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ پہلے قبلہ یہ تھا وغیرہ. اور پھر جب تحویل قبلہ ہوا کہ اب اس طرف میں قبلہ ہو گیا تو یہ لکھا ہوا تھا، ادھر میں بھی لکھا ہوا تھا. اس سے بہت زیادہ دیکھا لیکن کوئی ایسی کوئی عجیب بات لگی نہیں. پھر واپس جب گئے تو اس نے پوچھا کہ کیا دیکھا، تو ہم نے کہا کہ اس طریقے سے یہ دیکھا اور وہ دیکھا. کہ نہیں اس کے علاوہ اور کیا دیکھا؟ کہ ہم نے کہا کچھ بھی نہیں دیکھا، بس وہیں کھڑی تھی، اسی جگہ کے اندر میں بس کھڑی تھی. یہ مسجد ذوالقبلتین کے سامنے کھڑی تھی. بولا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو آپ تو اندر کی بات کرتے، باہر میں کچھ نہیں دیکھا. تو ہم نے کہا کہ باہر میں بھی کچھ نہیں دیکھا. بولا دور سے کچھ دیکھا؟ تو کہ نہیں دور سے بھی کچھ نہیں دیکھا. ہم نے کہا کہ بھائی بتاؤ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب دیکھو مسجد کی طرف. یہ جو مسجد ہے اس کے اوپر میں 2 گنبد ہے. مسجد کے اوپر میں 2 گنبد ہے. ایک گنبد ہے جس کے اوپر میں کبوتر نہیں ہے، اور دوسرے گنبد ہے جس کے اوپر میں کبوتر ہیں. تو واقعتاً وہ دیکھا تو ہم نے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو کہا کہ یہ جو گنبد ہے، یہ گنبد اس قبلہ اس محراب کے اوپر میں ہے کہ جہاں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی، اس کے اوپر میں جو گنبد ہے. تو پہلے یعنی تحویل قبلہ سے پہلے، قبلہ کا حکم بدلنے سے پہلے وہاں نماز پڑھی جاتی تھی اس طرف میں. تو وہ کبوتر اس گنبد کے اوپر میں بیٹھتے تھے. اور جب سے حکم بدل گیا اور حکم آیا کس کی طرف؟ کعبۃ اللہ کی طرف. تو یہ جو گنبد ہے یہ کعبۃ اللہ والا محراب اور منبر کا گنبد ہے، اور اس کے اوپر میں کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں. بولا یہ عجیب بات تھی جو آپ کو کہا تھا کہ دیکھ کر کے آنا. ہم کئی مرتبہ گئے لیکن کبھی بھی یہ ذہن نہیں گیا یہ گنبد پر کبوتر نہیں بیٹھے ہیں اور اس گنبد پر کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر میں بیان فرمایا کہ 16-17 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بدل دیا کعبۃ اللہ کی طرف. اب یہاں پر ایک بات تھوڑی سی عرض کر دوں کہ جب مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دیا تو یہودی خوش ہو گئے کہ آج ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کل اٹھ کر کے ہمارے نبی پر ایمان لائیں گے اور تورات کے اوپر میں ایمان لائیں گے. وہ انتظار کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے دے کعبۃ اللہ کی طرف کا. جیسے کعبۃ اللہ کا حکم آیا اور کعبۃ اللہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو یہودی کہنے لگے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے نبی کا دشمن، ہماری کتاب کا دشمن، ہمارے مذہب کا دشمن. یہ آج تک ہم کو اچھا لگانے کے لیے یہاں پر اس طرف میں چہرہ کرتا تھا، اب ہماری مخالفت کے اندر میں اس طرف چہرہ کرنے لگا. تحویل قبلہ جو ہوا مدینہ منورہ جانے کے بعد 16 مہینے یا 17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھی تو اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت کے اندر میں بیان فرمائی ہے. ابھی وقت نہیں ہے، تھوڑا سا ترجمہ کر دیتا ہوں، کل آئندہ تفصیل فی العرض کریں گے. سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ، ما ولاہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کو کس چیز نے پھیر دیا اس قبلے سے جس قبلے کی جانب وہ نماز پڑھتے تھے. قل، کہہ دو، اللہ تعالیٰ نے جواب جو دیا ہوا ہے حاکمانہ جواب دیا، حاکمانہ بائی آرڈر، پاور والا جواب کہ بھائی ہماری مرضی، ہم چاہیں جس کی طرف چہرہ کرنے کے لیے حکم دیں. للہ المشرق قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ یہ شمال اور جنوب تو کیا مشرق اور مغرب بھی اللہ کا ہے. پہلے مشرق کی جانب یہ شمال کی طرف نماز پڑھی گئی، پھر جنوب کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے. اگر اللہ کا حکم آئے گا تو مشرق کی طرف بھی نماز پڑھی جائے گی، اللہ کا حکم آئے گا تو مغرب کی طرف بھی پڑھی جائے گی. قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی. آگے جو حکیمانہ جو جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دیا ہے علماء کرام نے جو لکھا ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا.